Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, I am going to revise the sample paper that you have recently appeared as Unit 2nd examination. This is very important for those students that are going to appear in board for class 12. Actually, the sample paper is fully revised and based on latest paper patterns. So each and every question is very important. Before this video, since long time I never uploaded the revision of sample paper, so during the examination time it is very important to upload and revise stepwise the question paper and their revision. Actually here I have mentioned the quick revision, but here in this video lecture the full revision actually taken out through the different parts of the video lecture. So in this video lecture I have taken almost 10 question for the revision, and in next video lecture you will get the 10 more question related to the same question paper patterns. This video lecture will help you to improve for examination and also to overcome your different mistake that you have ordinarily made through the different examination. This kinds of question may ask in upcoming examination, so I hope you will make the separate note for each and every questions in the copy, in the same copy that you have made for the notes for the fair copies. So there is no need to prepare, there is no need to make the separate copy for the revision of sample paper, revision of question paper. Without delay timing, let back over the question number 1 and revise whatever the expected answer and what will be the solution of each questions. So without delay timing, let back over the question number 1 and revise them thoroughly. Now back to question number 1. Question number 1 is name the thin. Actually this should be the thin. Here I have mentioned the things. Unfortunately this is the thin. The name the thin clear coat around the mammalian egg. Actually mammalian egg here means the ovum. कीप इन माइंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है मैमेलियन ओवम के ऊपर जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है, थिन मेम्ब्रेन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो नोट कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा. जोना पेलुसिडा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा. इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली आपको सैंपल पेपर में ये मिल रहे हैं, बट ये एग्जाम के मेन क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए. नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. नेम द थिन क्लियर कोट अराउंड द मैमेलियन एग. हियर मैमेलियन एग मीन्स द ओवम, ठीक है, ओवम के ऊपर क्या होता है, जोना पेलुसिडा. अगर ये नॉन मैमेलियन एग होता तो उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन जो होता है उसको बोलते हैं वाइटेलाइन मेम्ब्रेन. ये याद रखना है आपको, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है. एग की स्ट्रक्चर चैप्टर 1 का वीडियो आपको मिला होगा, आप जानते होंगे, उससे आप पढ़े होंगे. चैप्टर नहीं, आपका जो चैप्टर 3 है, ठीक है, चैप्टर 2 हो जाएगा आपका इस साल. तो चैप्टर 2 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, ठीक है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, इसके अलावा एंट्रम वगैरह का स्ट्रक्चर ओवम में आप कॉमन पढ़े होंगे. तो इसको आप दिमाग में बैठा के चलिए, एग्जामिनेशन में स्ट्रक्चर भी आते हैं ओवम के, ठीक है. तो आउटर लेयर इसको क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मच टाइम ऑफ गेस्टेशन द फीटस हर्ट इज फॉर्म. एक्चुअली गेस्टेशन इज अबाउट 270 days और 9 month and the first organ form during the embryonic development is the heart, ठीक है. तो हर्ट फर्स्ट ट्राइमर्स में ही बन जाते हैं, बट जो आफ्टर गेस्टेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो ये इसका एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा वो 0 to 1 month में ही ये इसका प्रिपरेशन हर्ट का बन जाता है, ठीक है. तो इसको 3 week भी लिख सकते हैं. एक्चुअली ये 3 week से बनना चालू होता है और 1 month तक आते आते ये कंप्लीट हो जाता है. तो ये 1 month इसका एग्जैक्ट आंसर है. फर्स्ट ट्राइमर्स भी बहुत सारे स्टूडेंट लिखे हैं, फर्स्ट ट्राइमर्स. तो ये फर्स्ट ट्राइमर्स ये गेस्टेशन का पीरियड होता है और इसमें ओवरऑल चेंजेज बॉडी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, तो 3 कैटेगरी में बांटा गया, द फर्स्ट ट्राइमर्स, सेकेंड ट्राइमर्स एंड थर्ड ट्राइमर्स. तो जो फर्स्ट ट्राइमर्स का केस है उस फर्स्ट ट्राइमर्स के केसेस के साथ इसको जोड़ दिया जाता है
तो ये क्या बन जाता है, 3-3 महीने का एक एक पीरियड हो जाता है, 3 महीने का, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 9 मंथ का ये पीरियड पूरा पूरा हो जाता है गेस्टेशन का, जिसमें आप फर्स्ट ट्राइमर्स के अगर केस में अगर लिख रहे हैं, इसका आंसर अगर फर्स्ट ट्राइमर्स लिख रहे हैं तो भी सही है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मंथ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। When a tall pea plant was self-pollinated, 1/4 of its progeny is dwarf। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। When a tall pea plant was self-pollinated, 1/4 of its progeny were dwarf। कह रहा है कि अगर टाल पी प्लांट्स का क्रॉस करवाया गया, ठीक है, किससे, उसी से। सेल्फ क्रॉस का मतलब होता है कि सेम प्लांट्स का सेम प्लांट से, तो क्या मिला, 1/4 ऑफ इट्स प्रोजेनी, यानी कि 25% क्या मिला, ड्वार्फ मिल गया, 25% ड्वार्फ, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, 75% टाल मिला था, ठीक है। गिव द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स एंड ड्वार्फ प्रोजेनी, यानी कि इसका और इसका जीनोटाइप। तो ड्वार्फ प्रोजेनी का हमेशा जीनोटाइप कितना होता है, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसी का फाइंड आउट करना, देखो चूंकि प्लांट्स ये एक ही है, ठीक। अगर ये प्योर प्लांट होगा, देखो टाल के लिए आप कैपिटल टी भी लिख सकते हैं और कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इनका आपस में ही सेल्फ क्रॉस हुआ है या फिर इनका आपस में सेल्फ क्रॉस हुआ है। अगर कैपिटल टी का कैपिटल टी से सेल्फ क्रॉस होता है तो 100% आपको क्या मिलता है, टाल प्लांट्स, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कितना मिल रहा है, 1/4 ऑफ इस प्रोजीनी, यानी कि 25% ड्वार्फ मिल रहा है। तो ये तो क्लियर है कि वो जो प्रोजीनी जो पेरेंट्स है वो कैपिटल टी का केस नहीं है, ठीक है। और क्या है वो, कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो आपको जो आंसर है, ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, सीधे आप लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी इज इक्वल टू पेरेंट्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना रहता है बोर्ड में, स्मॉल टी इज इक्वल टू ड्वार्फ। ये तो हमेशा रहेगा क्योंकि रिसेसिव पेरेंट्स, ये रिसेसिव प्रोजेनी का स्मॉल टी होता है, ठीक है। तो ये आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं, पी फ्लावर्स प्रोड्यूस अशोर्ड सीड सेट्स, गिव अ रीजन। अब यहाँ पे आपको टर्म आता है अशोर्ड सीड सेट्स। क्या होता है, अशोर्ड सीड सेट्स ऐसे होते हैं कि जिसकी प्रॉपर्टी, जैसे मान लो कि ये कोई प्लांट्स है, ठीक है, इससे तमाम सीड्स बन रहे हैं और इसको अगर आप अश्योर्ड सीड सेट्स बोलते हैं। सो व्हाट डज इट मीन्स, अश्योर्ड सीड सेट्स आर दोज सीड सेट्स इन विच द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट्स आर फाउंड। अब इस पेरेंट्स की सभी प्रॉपर्टी इस सीड्स में हो और इस सीड से बनने वाले प्लांट्स में हो तो क्या बोलेंगे, द सीड्स आर अश्योर्ड सीड्स, ठीक है। अगर ये प्लांट्स टाल हो तो ये सब टाल होंगे, अगर ये प्लांट ड्वार्फ हो तो ये सब ड्वार्फ होंगे, अगर ये प्लांट्स वाइट हो तो सब वाइट वाले फ्लावर वाले होंगे। तो ये पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं, सिंपली बोल सकते हैं द सीड सेट दैट रिटेन द पेरेंटल प्रॉपर्टी। अब इस केस में क्या है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दो प्लांट्स अगर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जेनेटिकली जो है दो प्लांट्स अगर इन्वॉल्व होते हैं तो इस ये जो नए सीड्स बनेंगे अश्योर्ड नहीं रह जाएंगे, यानी कि आप दो पेरेंट्स के मिक्सचर हो जाएंगे, ठीक है। ये नहीं बोल सकते हैं कि ये टाली होंगे, ड्वार्फी होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि अश्योर्ड सीड्स, यानी कि एकदम पेरेंटल प्रॉपर्टी को रिटेन करने के लिए पैरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो बाईसेक्सुअल हो, ठीक है। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो प्लांट्स अगर बाईसेक्सुअल है तो इसमें एक ही पेरेंट्स में मेल फीमेल दोनों होते हैं और उसकी जेनेटिक प्रॉपर्टी उसकी ऑफस्प्रिंग में रिटेन हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, पी फ्लावर्स प्रोड्यूस अश्योर्ड सीड सेट्स, गिव अ रीजन। सो फर्स्ट रीजन इज द बाईसेक्सुअल, ठीक है, बाईसेक्सुअल। और इसके बाद क्या है, ये जो बाईसेक्सुअल होता है और इसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी एक टाइम पे होती है, यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम मेल एंड फीमेल, ठीक है, ये प्रोटोगाइनस या प्रोटोएंड्रस कंडीशन नहीं होता है, ठीक है। सेक्सुअल मैच्योरिटी अकर्स एट द सेम टाइम। तो ये अश्योर्ड सीड्स के रीजन है। अब आते हैं नेक्स्ट, नोट कर लीजिएगा, पहला रीजन क्या है, पी प्लांट्स आर बाईसेक्सुअल, नोट कर लीजिए। एंड सेकेंड रीजन इज द पी प्लांट्स, इन पी प्लांट्स मैच्योर सेक्सुअल मैच्योरिटी अकर्स ऑन द सेम टाइम, ठीक। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द नेम ऑफ कंपोनेंट्स ए एंड बी इन न्यूक्लियोटाइड विथ प्यूरिन गिवन बिलो। अब ये जो आपको दिया हुआ है इसमें ए का, ये ए क्या है और ये बी क्या है, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको जानना ये है
कि जिधर फॉस्फेट ग्रुप होता है, जैसे इधर ये जो है ये आपका यहाँ पे देखो ये फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक। ए जो दिख रहा है ये फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। और ये क्या है, बी क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक। ये नाइट्रोजिनस बेस है और ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। आपको क्या बताया गया था, इस तरह से स्ट्रक्चर पे आपकी प्रैक्टिस हुई है, तो यहाँ पे उसको आपको फोकस कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नाइट्रोजिनस बेस बनाते आए हो और यहाँ पे आप ऐसे इस तरह से लगा करके आप क्या बनाते आए हो, फॉस्फोरस। तो यहाँ पे CH2 करके आगे ए कर दिया है, CH2 करके आगे ए कर दिया है, यानी ए क्या है आपका फॉस्फेट। फॉस्फोरस भी बहुत सारे स्टूडेंट लिखे हैं जो गलत है, ये क्या है, फॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप या फिर फॉस्फोरिक एसिड ये भी लिख सकते हो, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड भी लिख सकते हो, फॉस्फेट भी लिख सकते हो, दोनों सही है। और ये जो दिख रहा है इस डायरेक्शन में ये नाइट्रोजिनस बेस है, जहाँ पे आपको आंसर में क्वेश्चन में दिया हुआ है प्यूरिन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्यूरिन बेस। अगर आप नाइट्रोजिनस बेस भी लिख रहे हो तो भी सही है, प्यूरिन बेस लिख रहे हो तो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो आपका ए और बी क्लियर हो गया होगा। ए क्या है, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप, और बी क्या है, नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, मेंशन द यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम लैटेक्स ऑफ पॉपी। अब पॉपी प्लांट्स के लैटेक्स, ठीक है। पॉपी प्लांट्स क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में इसका बायोलॉजिकल नेम भी पूछ देता है। इसका बायोलॉजिकल नेम होता है पैपेवर सोमनिफेरम, पैपेवर सोमनिफेरम, पैपेवर सोमनिफेरम, ठीक है। तो ये कभी कभी साइंटिफिक नेम भी पूछ देता है, हालांकि यह साइंटिफिक नेम नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यूजफुल और हार्मफुल ड्रग्स जो पैपेवर सोमनिफेरम से ऑब्टेन होता है, लैटेक्स से ऑब्टेन होता है, उसका नाम बताना। यूजफुल ड्रग्स क्या है, यूजफुल ड्रग्स है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, दोनों चीज़ें आपका क्लियर हो जा रहा है, चीज़ें नोट कर लीजिए। देखो जो पैपेवर सोमनिफेरम का प्लांट्स होता है उसको हल्का सा चीरा मारने पे क्या निकलता है, यहाँ पे मिल्की लेटेक्स निकलता है, ठीक है, मिल्की लेटेक्स, ठीक है, मिल्की लेटेक्स। और इस मिल्की लेटेक्स से क्या निकलता है, इससे निकलता है मॉर्फिन बनता है। और ये मॉर्फिन जो होता है ये सीडेटिव है, जिसमें जिसको आप एनास्थेसिया वगैरह में यूज करते हैं, तो इसलिए इस ये क्या हो जाएगा, मॉर्फिन, ये यूजफुल ड्रग्स है, ठीक, ये यूजफुल ड्रग है। इस पे केमिकली एसिटिलेशन करा करके नया प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटिल मॉर्फिन, ठीक है, एसिटिल मॉर्फिन। और ये एसिटिल मॉर्फिन को स्मैक भी बोलते हैं या फिर हेरोइन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको स्मैक और हेरोइन दोनों बोला जाता है। तो ये हार्मफुल ड्रग्स है, ठीक है, इसका मिसयूज किया जाता है और ये क्या है, हार्मफुल ड्रग्स है। तो यूजफुल ड्रग्स क्या है, मॉर्फिन, और हार्मफुल क्या ड्रग्स है, एसिटिल मॉर्फिन और स्मैक और हेरोइन, ये कॉमन नेम है, ठीक है। और बायोलॉजिकल उसका IUPAC नेम है एसिटिल मॉर्फिन। तो ये सब सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्या हो गया है, 7 कंप्लीट हो गया है। 8 पे आते हैं, विच स्पीसीज ऑफ पेनिसिलियम प्रोड्यूस रॉकफोर्ड चीज। देखो चीज जो है दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक होता है स्विस चीज और एक होता है रॉकफोर्ड चीज। स्विस चीज जो है ये फंगी से ये बैक्टीरिया से बनता है, और रॉकफोर्ड चीज ये फंगी से बनता है। कौन से फंगी से, क्वेश्चन पूछा है उसी के फंगी से। तो ये रॉकफोर्ड चीज क्या है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी के थ्रू, पेनिसिलियम तो लिखा हुआ है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी से बनता है। क्या बनता है, स्विस चीज, ठीक है। और ये रॉकफोर्ड चीज बनता है, ठीक है, नाम के अकॉर्डिंग पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। और अगर स्विस चीज पूछे तो स्विस चीज कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं और वो बैक्टीरिया से बनता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ये एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन, ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। हाँ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मिल्क स्टार्ट coagulation when lactic acid bacteria is added to warm milk as starter. Mention any other
टू बेनिफिट दैट लैब प्रोवाइड। कह रहा है कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, जिसको लैब भी बोलते हैं, ध्यान देना है, ये पहला काम तो क्या करता है, मिल्क को कोएगुलेट करके, ठीक है, मिल्क को कोएगुलेट करके क्या बनाता है, कर्ड बनाता है, ठीक है। दूसरा इसका एडवांटेज पूछ रहा है, तो दूसरा क्या करता है, ये स्टमक में पैथोजेंस को चेक करता है, चेक द पैथोजेंस इन स्टमक, ठीक है, चेक द पैथोजेंस इन स्टमक। एंड सेकेंड, improve the nutritional quality of curd, improve the nutritional quality of curd, यानी कि कर्ड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, उसमें बहुत सारी एडिटिव चीज़ें डालता है, जैसे क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है, विटामिन B12, ये सब एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, कर्ड की इफिशियंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है मिल्क के कंपेयर में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, नेम द क्राई जीन्स दैट कंट्रोल कॉटन बॉल वर्म एंड कॉर्न बोरर रिस्पेक्टिवली। देखो ये चैप्टर 12 का मैटर है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें क्राई जीन्स के बारे में पूछा है। क्राई जीन क्या होता है, एक्चुअल में ये आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसमें उस समय मैं डिटेल इसका वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा। क्राई जीन एक्चुअली एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉटन बॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉटन का प्लांट्स। इसको, इस कॉटन के प्लांट्स में, ठीक है, बीटी कॉटन भी इसको बोलते हैं, इसमें बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस का जीन्स जो है इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, ठीक। ये बीटी कॉटन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जीन्स है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस बैक्टीरिया से। बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस बैक्टीरिया ऐसा होता है जो स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाता है, जिसको कहते हैं क्रिस्टल प्रोटीन और क्राई प्रोटीन। ये टॉक्सिक होता है सिर्फ एनिमल्स के लिए, ठीक है, एनिमल्स के गट सिस्टम को डैमेज करता है, यानी प्लांट्स को ये कुछ नहीं नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अब ये होता क्या है कि ये क्राई जीन्स जो है दो तरह का होता है, एक होता है क्राई फर्स्ट AB और एक होता है क्राई फर्स्ट AC, ठीक है। क्राई फर्स्ट AB और क्राई फर्स्ट AC दोनों की खास बात होती है कि ये कॉटन बॉल वर्म को भी, कॉटन बॉल वर्म को किल करते हैं, यानी कॉटन बॉल वर्म, देखो कॉटन के प्लांट्स में सबको पता है कि उससे कॉटन निकलता है, जिसकी शुरुआत में कॉटन का बॉल बनता है, फिर बाद में ये थोड़ा सा मैच्योर होने पे इससे रेसे निकलते, तो ऑब्टेन किया था इससे, इससे कॉटन ऑब्टेन किया था थ्रेड वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये शुरुआत में क्या होता है, बॉल लाइक होता है, इसी में ये होल करके उसको खा जाता है, उसके अंदर के फाइबर्स को खा जाता है, जिससे कॉटन की प्रोडक्टिविटी घट जाती है। तो ये कॉटन के प्लांट्स के अंदर घुस के उसके फाइबर्स को खा जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कॉटन बॉल वर्म, ठीक है, कॉटन के बॉल को खाने वाला कीड़ा। तो ये क्राई फर्स्ट AC जीन्स और क्राई फर्स्ट AB जीन्स, ये दोनों जीन्स जो है, ये दोनों तरह के, क्राई फर्स्ट AC प्रोटीन बनाता है, क्राई फर्स्ट AB प्रोटीन बनाता है, ये दोनों कॉटन बॉल वर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इसमें से जो क्राई फर्स्ट AB है, ये कॉर्न बोरर को भी नुकसान पहुंचाता है, यानी कॉर्न बोरर एक दूसरा प्लांट से, कॉर्न के प्लांट्स में लगने वाले वर्म को मारता है, ठीक है। कॉर्न बोरर ये दूसरे टाइप का इंसेक्ट है, ये कॉर्न के प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, तो इसको भी, ये क्राई फर्स्ट AB जो इसका डुअल रोल है, ये कॉटन बॉल वर्म को भी किल करता है, यानी उस इंसेक्ट को मारता है जो कॉटन के प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, और उस इंसेक्ट को भी किल करता है जो कॉर्न के प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसका डुअल रोल है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्राई फर्स्ट AB, ठीक है, क्राई फर्स्ट AB जीन्स। लेकिन अगर सिर्फ और कॉटन बॉल वर्म के केस में पूछे तो दोनों आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्राई फर्स्ट AC। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि कौन सा क्राई जीन्स जो कॉटन बॉल वर्म को भी किल करता है और कॉर्न बोरर को भी किल करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्राई फर्स्ट AB। क्राई फर्स्ट AC जो है सिर्फ कॉटन बॉल वर्म को किल करता है, ये आपको जानना चाहिए, जब पढ़ाया जाएगा तो एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हमने 10 क्वेश्चन का रिवीजन करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हमने सेलेक्ट किया असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, जो आपको बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम असर्शन रीजन, यानी कि फ्रेश, हमको एक ऐसा टॉपिक इस साल ऐड किया गया जो आपको काफ़ी मेंटली बहुत सारे स्टूडेंट ने गलतियाँ की हुई है, और आई होप अगर उसको आप गेट करेंगे, उसको देखेंगे अच्छे से, तो ये गलतियाँ कम होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम 11 ऑनवर्ड क्वेश्चन को टच करेंगे।
आई होप आप क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एकदम से क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। थैंक यू।